بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں تجلیات، مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 233 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7 صفحہ نمبر 100 سے۔ انفرادی حدود میں دولت پرستی کی بیماری آدمی کی انا اور اس کی ذات سے گھن بن کر چپک جاتی ہے، اس کی انسانی صفات کو چاٹتی رہتی ہے اور خالق کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آدمی کے باطن میں ایک شیطانی وجود پرورش پانے لگتا ہے جو لمحہ بلمحہ بڑا ہو کر اس کی ذات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آدمی کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں دولت کی حفاظت میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت پرستی کا مرض معاشرے پر پھیل جائے تو قوم کے افراد ایک دوسرے کے حق میں بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ آدمی کے لباسوں میں یہ درندے جب موقع ملتا ہے جھپٹ کر دوسرے کو شکار کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں طرح طرح کے قوانین اور رسوم کو رواج دے کر نچلے طبقے کا خون چوستے رہتے ہیں۔ قانون قدرت سرمایہ پرستی اور لالچ کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسی قوموں کو غلامی، ذلت اور افلاس کے عمیق غار میں دھکیل دیتا ہے۔ قرآن پاک سرمایہ پرستوں کے اس اولین دعوے پر کاری ضرب لگاتا ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی دولت ان کی ہنر مندی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ رزق کا حصول اور اس کی پیدائش تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، ایک خام خیال ہے۔ فطرت کے قوانین اور اس کے وسائل خود تمہارے لیے مسلسل رزق کی بہم رسانی میں مصروف ہیں۔ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں زمین پر برستا ہے اور زمین کی مردہ صلاحیتوں میں جان ڈال کر اسے وسائل کی تخلیق کے قابل بنا دیتا ہے۔ زمین طرح طرح کی پیداوار کو جنم دے کر انسان کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کے قیام کے وسائل فراہم کرتی ہے۔ ہوا، سورج کی روشنی اور بہت سے دوسرے عوامل اس دوران فصلوں کو بار آور کرنے میں سرگرم رہتے ہیں اور بلا معاوضہ آدمی کی خدمت کرتے ہیں۔ رزق اور وسائل کے حصول اور عمل میں انسان کی کوشش صرف ہاتھ بڑھا کر روزی حاصل کر لینا ہے۔ رب کی مرضی۔ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اس پر رنج و غم اور تکالیف کا دور آتا ہے اور کبھی خوشی اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کبھی جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور کبھی مالی منفعت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے جذبات اور اس کی سوچ میں حالات کے ان تلاطم سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب اس پر مصائب کا زمانہ آتا ہے تو وہ بشری تقاضے کے تحت رنج و غم اور تفکرات سے نیم مردہ ہو کر رہ جاتا ہے اور نا امیدی اور احساس کمتری اس کے ذہن پر قبضہ جما لیتی ہے۔ جذبات کی روح میں آ کر وہ قانون قدرت کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ قانون قدرت سے واقفیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس جب اس پر خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں اور خوشیاں اس کے حصے میں آتی ہیں تو وہ ان حالات کو اپنی قوت بازو پر محمول کرتا ہے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مومن کی طرز فکریہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت کو، چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو یا مالی فراوانی کی ہو، ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کبھی نا امیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا شعار ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور بھی ایک رد عمل ہے۔ وہ آزمائش کے زمانے میں جدوجہد
और अमल के रास्ते को तर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी एक बेहम जहदोजहद होती है। तमाम अंबिया किराम का जहन यही था कि वो हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे और हर आजमाइश में अल्लाह के शुक्र के साथ साबित कदम रहते थे। शिकायत का कोई कलमा उनके लबों से अदा नहीं होता था। कुरान पाक ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर तवक्कल और मुश्किलात में साबित कदमी का सिंबल बनाकर पेश किया है। इसके बरखिलाफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को माली फरावानी और खुशहाली में शुक्र, इनकिसारी, फरोतनी और सखावत का मजहर बनाकर पेश किया है। अल्लाह के यही मुकद्दस बंदे हैं जिनके मुतालिक इरशाद खुदाबंदी है, और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, भूख, जानो माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर कहते हैं हम खुदा ही के हैं और हमें खुदा ही की तरफ पलट कर जाना है। उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी और उसकी रहमत होगी, और ऐसे ही लोग राह हिदायत पर हैं। एक और जगह इरशाद है, जो मसाइब भी रुए जमीन पर आते हैं और जो आफतें भी तुम पर आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम उन्हें वजूद में लाएं एक किताब में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम ना करते रहो। दुनिया और आखिरत। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रब बंदों की खुसूसियात के ज़मन में एक बात ये बताई है कि रातों को उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं और बेदार रहकर अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहते हैं। इससे सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआएं मांगते रहें, उसके फजल का सवाल करते रहें, रुकू सुजूद में मसरूफ रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया है कि ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को कयाम किया करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। सूरह मुज़म्मिल। रात के इस कयाम की वजह अल्लाह ताला ने खुद ये बताई है कि दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। सूरह मुज़म्मिल। इन अहकामात की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अव्वल शब आराम फरमाते थे और रात के पिछले पहर इबादत में मशगूल हो जाते थे। यही इबादत और नींद के बेहतरीन औकात हैं। आम हालात में रात गए तक जागने और दूसरे वक्तों में नींद पूरी करने से आसाब बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। फितरत के निजाम में रात का पहला हिस्सा आराम और सुकून के लिए, पिछला पहर इबादत और यकसोई के लिए, और दिन का वक्त हुसूल माश और दूसरी मसरूफियात के लिए मुकर्रर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून और आराम, रात को पर्दा पोश और दिन को रोजी के लिए दौड़ धूप का वक्त बनाया है। सूरह निसा। नींद और बीमारी के मामले में एतदाल की रविश अख्तियार करनी चाहिए। न इतना ज्यादा सोना चाहिए कि जिस्म पर काहिली सवार हो जाए और दिमागी फैल सुस्त पड़ जाए, और न इतना कम सोना चाहिए कि दिमागी थकन पूरी तरह रफा ना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये बात सही है कि तुम रोजाना दिन में रोजे रखते हो और रात रात भर नमाजें में गुजारते हो? हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना करो, कभी रोजा रखो और कभी खाओ पियो, इसी तरह सो भी और उठकर नमाज भी कायम करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है। क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि ये आराम और सुकून हासिल करें और दिन को रोशन? बिलाशुबा इसमें मोमिनों के लिए सोचने के इशारात हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए तशरीफ ले जाते
तो वजू करते और लेटने से पहले कुरान पाक के किसी हिस्से की तिलावत फरमाते। बिस्तर में लेटने से पहले अक्सर ये दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, तेरे ही नाम से मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरे ही सहारे मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा। अगर तू रात ही में मेरी जान कब्ज कर ले तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू इसे छोड़कर मजीद मोहलत दे तो इसकी हिफाजत फरमा, जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, शुक्र तारीफ खुदा ही के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और जिसने हमारे कामों में भरपूर मदद फरमाई और जिसने हमें रहने बसने का ठिकाना बख्शा। कितने ही लोग हैं जिनका न कोई मुअय्यन व मददगार है और ना कोई ठिकाना देने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म और मुलायम बिस्तर इस्तेमाल नहीं करते थे। आपका बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मेरे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर एक टाट था जिसका दोहरा करके हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। कभी कभी चटाई पर भी आराम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ख्वाबगाह के लिए या आराम करने के लिए कीमती और नर्म सामान इस्तेमाल नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे। चटाई पर लेटने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर निशानात पड़ गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं ये देखकर रोने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोता देखकर वजह दरियाफ्त फरमाई। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसर और किसरा तो रेशम और मखमल के गद्दों पर सोएं और आप बोरिए पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रोने की बात नहीं है, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले जरूरी चीजें अपने सिरहाने रख लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि सोने से पहले घर की तमाम चीजों का अच्छी तरह जायजा ले लिया करो। खाने पीने के बर्तन ढांक दो और आग जल रही हो तो उसे बुझा दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो दोनों हाथ दुआ मांगने की तरह मिलाते और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तिलावत फरमा कर हाथों पर दम फरमाते और फिर जहां तक हाथ पहुंचता अपने जिस्म मुबारक पर फेर लेते और ये अमल 3 मरतबा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं रुखसार के नीचे हाथ रख कर दाएं करवट लेटना पसंद फरमाते थे और सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेते थे। रात के पिछले पहर जल्द से जल्द बेदार होकर इबादत में मसरूफ रहते थे। कभी इससे भी पहले बेदार हो जाते थे और कभी तो पूरी रात ही इबादत में मसरूफ रहते थे। बीवी की अहमियत। अपने घर वालों को इस्लामी अखलाक से आरास्ता किया जाए और उनकी सही तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि वो माशरे के लिए आला नमूना बन जाएं। लड़के मुल्क कौम के लिए तरक्की और कामरानी की सनत का दर्जा हासिल कर लें और लड़कियां अच्छी बीवियां और सादत निशान माएं बनकर रहमत का गहवारा बन जाएं। ऐसा गहवारा जो नूए इंसानी के लिए फलाह बहबूद, मसावात और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। कुरान पाक बाआवाज़े बुलंद इरशाद फरमाता है, और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए और उस पर खुद भी पाबंद रहिए। बीवियों पर निहायत खुजली के साथ अपने शौहरों की अताअत फर्ज है। इस अताअत में मुसर्रत और शादमानी का पैगाम छुपा हुआ है, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है और जो बीवी खुदा के हुक्म की तामील करती है वो अपने खुदा को खुश करती है। खुदा की हिदायत का तकाजा यही है और अज़दवाजी जिंदगी की को खुशगवार बनाए रखने का एक कामयाब फॉर्मूला भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेक बीवियां अताअत करने वाली हैं। शौहरों को चाहिए कि वो बीवियों पर नाजायज तसर्रुफ ना करें। शौहरों पर ये फर्ज आयद है
کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ رفیق حیات کی ضروریات پوری کریں اور اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں۔ اس حق کو خوشدلی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے جدوجہد اور دوڑ دھوپ کرنا انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ اس عمل کو انجام دینے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ازدواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے، بلکہ اچھا اور مخلص شوہر آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے۔ بیوی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ احسن الخالقین کی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدمیت اور اس کی نشو و نما کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ دوسری جگہ یہ ارشاد ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کوئی باشعور آدمی اپنے لباس کو تار تار نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خود شناسی، اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا تاکہ رسول ہمارے لیے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔ قرآن کریم۔ ہم بحیثیت مسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور ہمیں وہی کلام انجام دینا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے ہیں۔ جس طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی زندگی سے خدا کے دین کو پھیلانے اور واضح کرنے کا الحق ادا کیا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں بھی دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے تاکہ پوری نوع انسانی اللہ کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ خود اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی روح سے آشنا ہو کر اللہ کو پہچان لیں۔ جو لوگ خود شناسی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دیں جو راستہ صراط مستقیم ہے اور جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر عرفان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دعوت کو عام کرنے کے لیے کچھ ضابطے ہیں، اصول اور قاعدے ہیں، ان کو ذہن نشین رکھیے۔ اپنی اصلی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے، خود نمائی اور کبر سے بچیے، کوشش فہم جاری رکھیے، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کیجیے، مقصد کے لیے زندہ رہیے اور اس ہی کے لیے جان دیجیے۔ انہی کاموں کو انجام دینے کے لیے خدا نے آپ کو خیر امت کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔ پاکیزہ نفس اور روحانیت سے سرشار لوگوں سے محبت بندے کو خود شناسی سے قریب کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ بلا شبہ محبت آخرت کی نجات ہے۔ غصہ، نفرت، تفرقہ، بغض و عناد اس مشن کا تشخص ہے جو بارگاہ ایزدی سے معطوب اور گم کردہ راہ ہے۔ یہ مشن کبر و خنفوت، ضد اور ذاتی طور پر غرور کا پرچار کرتا ہے۔ اس کردار میں وہ تمام عوامل کار فرما ہے جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر تاریکی گھٹا بن کر چھاتی ہے اور ادبار اور آلام و مصائب اس پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ بظاہر دنیا کی ہر آسودگی میسر ہوتی ہے، لیکن دل میں ایک ایسا ناسور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے تعفن سے روح کے اندر لطیف انوار اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں، اور جب قطع و برید کی یہ عادت مزمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر دمیز اور گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں امن و سکون سے دور کر دیتی ہے، بلکہ ایسا بندہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे और उनके चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे। वो मोतियों के मिंबरों पर बिठाए जाएंगे। लोग उनकी शान पर रश्क करेंगे। ये लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे। एक बद्दू ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? हमें इनकी पहचान बता दीजिए। फरमाया, ये वो लोग हैं जो आपस में खुदा की खातिर मोहब्बत रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का दीदार हुआ। खुदा ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मांगिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ऐ खुदा, मैं तुझसे नेक कामों की तौफीक चाहता हूँ और बुरे कामों से बचने की कुव्वत चाहता हूँ और मिस्कीनों की मोहब्बत चाहता हूँ और कि तू मेरी खता माफ कर दे। तू मेरी मगफिरत फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा। और जब तू किसी कौम को अजाब में मुब्तला करना चाहे तो मुझे इस हाल में उठा ले कि मैं उससे महफूज रहूं। और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उस शख्स की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और उस अमल की तौफीक चाहता हूँ जो तेरे कुर्ब का जरिया है। दिमाग में छुपा हुआ डर। तबलीगी काम अपने घर से शुरू कीजिए। अगर आपके घर में आपकी रफीक हयात या आपका रफीक सफर दीनी और रूहानी उलूम से बहरावर है, तो आप दोनों अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। बच्चे का पहला गहवारा माँ की आगोश और बाप की गोद है। आप दोनों अगर इस्लामी अखलाक से आरास्ता होंगे तो बच्चों की तरबियत और सुधार के लिए घर में तालीम और तरबियत का पहला स्कूल बन जाएगा। मर्द के ऊपर फर्ज है कि बच्चों और बीवी की तमाम जरूरियात पूरी करे। औरत के ऊपर फर्ज है कि अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाए रखे। दोनों को चाहिए कि अपने कौलो अमल और अंदाजो अतवार से एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का यही राज है और खुदा को खुश रखने का भी दरिया भी। अल्लाह ताला आपको जो औलाद देता है उसे कभी जाया न कीजिए। पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद औलाद को जाया करना बदतरीन संगदिली, भयानक जुल्म, इंतहाई बुज़दिली और दोनों जहां की तबाही है। विलादत के वक्त विलादत वाली औरत के पास आयतुल कुर्सी और सूरह एराफ की आयतें 54-55 पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें। विलादत के बाद बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहिए। अजान और अकामत के बाद किसी नेक मर्द या नेक औरत से खजूर चबवा कर बच्चे के तालू में लगवाइए और बच्चे के खैर बरकत की दुआ करवाइए। 7वें दिन अकीका कीजिए। बच्चों को डराएं नहीं, क्योंकि इब्तिदाई उम्र में दिमाग में छुपा हुआ डर सारी उम्र जहन से चिमटा रहता है और खौफजदा बच्चे जिंदगी में कोई बड़ा काम सरअंजाम देने के काबिल नहीं रहते। औलाद को हर वक्त सख्त और सुस्त कहना और हर वक्त बुरा कहते रहना भी गलत है। इससे बच्चे की सही परवरिश नहीं होती और वो डांट डपट कर रोजाना का मामूल समझने लगता है। बच्चे नादान होते हैं। उनकी कोताहियों पर बेजार होने के बजाय ये सोचिए कि आप भी उन्हीं की तरह बच्चे थे और आपसे भी बेशुमार कोताहियां सरजद हुई थी। नफरत का इजहार करने की बजाय हिकमत, तहम्मुल और बुर्दबारी से उनको समझाइए। उनको ये तासुर दीजिए कि आप उनके हमदर्द हैं। उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरिए ताकि उनके अंदर अताअत और फरमाबरदारी के जज्बात उभर आएं। रोजा। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं। रोजे के अजीम फवाइद और बेपाया असरात को बयान किया जाए तो उसके लिए हजारों वर्क भी नाकाफी होंगे। मुख्तसर ये कि रोजा अमराज जिस्मानी का मुकम्मल इलाज है, रूहानी कदरों में इजाफा करने का मौसर अमल है, बुराइयों से बचने के लिए एक ऐसी ढाल है जिसका कोई तोड़ नहीं। रोजेदार एक मखसूस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। कयामत के दिन रोजा उस बंदे की सिफारिश करेगा जिसने पूरे अदब व एहतराम के साथ रोजे को खुशामदीद कहा था। रोजे रखने से जिस्मानी कसाफतें दूर हो जाती हैं
और आदमी के अंदर लतीफ रोशनियों का बहाव तेज तर हो जाता है। रोशनियों के तेज बहाव से आदमी के जहन की रफ्तार बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके सामने फरिश्ते आ जाते हैं और वो गैब की दुनिया में अपनी रूह को सैर करते देखता है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों पर फर्ज रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ताला मुत्तकी की तारीफ में फरमाते हैं कि मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं। रूहानियत में गैब पर यकीन रखने के मायने ये हैं कि गैब मुशाहिदे में आ जाए, इसलिए कि बगैर मुशाहिदे के यकीन की तकमील नहीं होती। रोजा बंदे को ऐसे दरवाजे पर ला खड़ा करता है जहां गैब यकीन बन जाता है। मनाजिर, मादियत और रूहानियत पर फाइल मुख्तार एक ही हस्ती है और वो है अल्लाह। मादियत में हम अल्लाह के जारी कानून का शब रोज मुशाहिदा करते हैं, जबकि रूहानियत में जो इससे बुलंद ताक़ुल और तफक्कुर कार फरमा होता है। रूहानियत में जब वजदान अक्ल और शऊर को रहनुमा बनाते हैं तो इंसान के सामने इस कायनात की हकीकत रोशन हो जाती है। इंसानी हवास में सबसे पहले बसीरत काम करती है। इस तरह हम सबसे पहले इस कायनात का मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा इंसान को दावत फिक्र देता है और इस तरह इंसानी सोच का धारा मुड़ता है। यूं तो मेवारे कायनात ने जो कुछ बनाया है अपनी मिसाल आप है। खाकी जमीन से लेकर नीले आसमान तक जो कुछ भी है, अगर उस पर गौर व फिक्र किया जाए तो ये हकीकत आया होती है कि अल्लाह वाहिद की अहदियत में एक ही कानून नाफिज है और वो अब्दियत है। इस जमीन पर कहीं फलक बोस पहाड़ है जिनकी चोटियों पर बर्फ जमी रहती है और कहीं सब्जा है जिनके दरख्त फलों और फूलों से लदे होते हैं, और कहीं ना पहाड़ है और ना ही सब्जा बल्कि रेत ही रेत है। दुनिया में कोई ऐसा मुसव्विर, कोई ऐसा मंजर निगार नहीं गुजरा जिसने इस कुर्रे अर्ज पर वाक़े मनाजिर से पहलू तही करके कोई नया तसव्वुर पेश किया हो। ये इस बात का सबूत है कि इस दुनियाए रंगो बू को अल्लाह ताला ने ऐसे मनाजिर से आरास्ता किया है कि इंसान किसी से बददिल नहीं होता। इन मनाजिर में अब्दियत की वो महक शामिल है जो इंसान की फितरत में अजल से कायम है। अल्लाह जमीन से आसमान तक है, यानी इसका वजूद तमाम कायनात पर मुहित है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान से लेकर तमाम जानदार और नबातात और जमादात उसकी तस्बीह में मशगूल हैं। कुरान पाक की सूरह अंबिया, सबा और सूरह स्वाद में इस सिलसिले में सराहत के साथ बयान किया गया है। तर्जुमा, और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे कर दिया है कि वो दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं, और हम ही में ऐसा करने की कुदरत है, और बेशक हमने दाऊद को अपनी जानिब से फजीलत बख्शी है। वो ये कि हमने हुक्म दिया, ऐ पहाड़ों और परिंदों, तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। तर्जुमा सबा, बेशक तुमने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया है कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं, और परिंदों के परे जमा होते और सब मिलकर हम्दो सना करते हैं। इन आयात पर गौर करने से साफ जाहिर होता है कि चरिंदों, परिंद और पहाड़ों की तस्बीह ज़बान हाल से है। गोया कायनात की हर शय का वजूद और इसकी तरकीब खुदा की खालकियत की शाहिद है, और यही उसकी तस्बीह और तमजीद है। एक और जगह कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इरशाद रब्बानी है, आसमान और जमीन खुदा की तस्बीह करते हैं और कायनात की हर शय खुदा की तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह का फहम और अदराक नहीं रखते। इन आयात में दो बातें काबिल गौर हैं। अव्वल ये कि कायनात की हर शय तस्बीह करती है, दोम ये कि जिन्नो इंस उनकी तस्बीह समझने का फहम और अदराक नहीं रखते। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पर वाक़े हर शय, जिनमें हैवानात, नबातात और जमादात भी शामिल हैं, किताब
तजल्लियात का पार्ट 7 सफा नंबर 116 पर अख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब पार्ट नंबर 8 सफा नंबर 116 से समाअत फरमाई।